So Namaskar, good evening and welcome. I'm Shashidhar, your host, and we are in the Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet, Wednesday meet. And today the agenda for the session is Satyug manifestation. And as we all know, in the last 2 weeks we have been talking on free will and manifestation, and we also talked about miracle manifestation. So this is in continuation with that. Whatever topics we have touched in the last 2 weeks, we'll be building on that, and we will see how we can actually go ahead with the manifestation of Satyug in our life. Yes. So before I start the session, anybody who wants to share your takeaways from the last 2 weeks, what is happening in your life, anything that you want to share, please go ahead. Breakdowns, breakthroughs, insights, मिरेकल मैनिफेस्टेशन, किसी ने लाइफ में मिरेकल मैनिफेस्ट किया तो शेयर कर सकते हैं. मीनवाइल लेट मी वेलकम अंकित मिश्रा जी, वेलकम, एंड सी मनी जी, वेलकम. Yes. So anybody who wants to share anything, please go ahead. Yes, Gunjan ji, go ahead. Sir, it was my son's first final exam today, and मेरी यही मिरेकल मेरे मैनिफेस्टेशन है जो दिसंबर में फेल हुए है और आज उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, एंड आज सरस्वती जयंती भी है. So I'm very happy. Very good. So turning a failure into a success, huh? Wonderful, wonderful. Let's acknowledge Gunjan ji for that. So that's a miracle she has manifested in her life. Definitely, when it is in your life, it could be your family members also, because they are in your part of your life. So wonderful. So great examination result for your son who did not fare very well in the last exam. Very good. Yeah. Okay. Anybody else who wants to share? क्या चल रहा है? Yes. Yes, Ankit ji. Thank you. Yeah. Sir, Yes. कौन? Parth? Yeah, go ahead. तो लाइक आज वैलेंटाइंस है तो मेरे को पता नहीं था, बट है मतलब आज वैलेंटाइंस. सो कल रात को क्या हुआ, अभी हम लोग नए घर में शिफ्ट करे ना. सो जब हम लास्ट सामान लेके जा रहे थे, सो बस एक पापा ने मतलब किसी ने उनको दिया था एक पोस्टर, है ना. तो दैट वाज फ्रॉम द शिव परिवार. तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा लाइक शिव का इसमें वो है, इमेज है. ठीक है. कल रात को खुद ही मेरे को आया, तो मैं so basically on Valentine's Day, like I opened that and मैंने उसको अपने वॉल पे लगाया अच्छे से, है ना. so like so Valentine's Day पे क्या कहते हैं, मेरे रूम के अंदर फर्स्ट टाइम, है ना, शिव जी एंड पार्वती जी जो है वो आ गए. Wow, very good, very good. So I was just posted in the evening that you should celebrate Valentine as you become God's Valentine or make God your Valentine. Because आत्मा का परमात्मा के साथ ही है सब कुछ, चाहे वो ट्विन फ्लेम बोलो या वैलेंटाइन बोलो, जो भी है, आत्मा का कनेक्शन सिर्फ परमात्मा के साथ है, बाकी सब तो आना जाना है, परमानेंट कनेक्शन वही है. Very good Path. So you invoke the Shiva and Shakti in your life on this Valentine. Very good, wonderful. And by the way, today is Vasant Panchami also, so Lord Saraswati ji is also blessing us. Yeah. All right, very good. So good sharing, Parth and Gunjan ji. Anybody else who wants to share? You can share on the topic today also. What is your understanding of Satyug? We will be looking at the macrocosm, and we will also look at the level of microcosm. But my focus will be always on the microcosm. I always believe that the life moves from inside out. So we will be looking at how you can manifest Satyug in your life. But of course, we will see what is the overall impact in the macrocosm, and we will see how you can manifest that in your own life, in your world. How do you manifest that? Okay, so anybody who wants to share on that? Kamala Devi ji says, Jai Hind, very good. Welcome ji. वेलकम वेलकम कोमला देवी जी. यस. तो कौन शेयर करना चाहेंगे? साइलेंट मोड में हैं सारे. चलिए कोई बात नहीं. So we will start the discussion. So let us look at
I hope that the takeaways of the last 2 weeks are clear, so I will not do a quick recap, but I'll just bring out the main points that we have discussed. Okay, so we talked of free will. So free will is a combination of freedom of choice, and when you are actually expressing freedom of choice, you are expressing divine will. Yes, that is a takeaway that we learned from the last session. So freedom of choice along with willpower gives you free will, and whenever you are using free will, you will create something big, something great in your life, because you are breaking away from the reactive mode or the conditioning mode of the ego. तो जब भी आप ego के conditioning से बाहर जाएंगे, free will को exercise करेंगे, you will be invoking the divinity and you will be in the creation mode. This is what we had learned in the free will manifestation. Everybody clear on that? Then we looked at miracle manifestation, and miracle manifestation we saw with your free will and of course your divine grace and blessings, which is a must. When we talk of miracle, you need to be connected with the divine grace and blessings, right? And with that, with our intention and our power of attention, we manifest miracles in our life. We attract miracles in our life. So that was the crux of what we did in the last week, miracle manifestation. So continuing with this trend, we are today looking at how to manifest Sat Yoga in our life, correct? So first let us understand in the macrocosm, that means in the outside world, how do we look at the 4 yugas, right? So we know the 4 yugas. Who is going to tell me what are the 4 yugas? सतयुग, सतयुग, त्रेता, Yeah, Satyug. द्वापर, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, then कलयुग. Very good. So everybody is aware of that. Very good, very good. Let's acknowledge part. Okay. So Satyug है, Treta Yug है, Dwapar Yug है और Kali Yug है. And nowadays we are in what? Everybody should know that where we are right now, है ना? तो मैक्रोकॉस्म के हिसाब से हम अभी कहाँ पे हैं? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग, कलयुग चल रहा है ना? एंड अभी तो घोर कलयुग चल रहा है. तो is darkest phase of the dark age, है ना? So this is actually called the worst phase. इसके बाद संगम युग है, उसके बाद फिर back to सतयुग. That's how we look at it, right? Now let us look at how in the outside world has been created like this, and we should always remember the formula. संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है, right? तो अगर कलयुग क्रिएट हुआ है तो सबने मिलके किया. That means the collective consciousness of the planet Earth has created Kalyug on the planet Earth. No doubt about that, right? Collective consciousness जो planet की है वो कलयुग की है, dark है, lowest vibration पे है. That is why Kalyug is manifested on the planet Earth. But that doesn't mean everybody is at the lowest level of consciousness, but collective consciousness is low. You can say that. And if you compare it with Satyug, how it happens? सतयुग में मान लीजिए अगर सडनली ये 800 करोड़ लोग सतयुग में अगर जा रहे हैं, या पॉपुलेशन इज 800 crores एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सतयुग. आगे की सोच रहे हैं, ठीक है ना? तो पॉपुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, बट देन इफ यू हैव ऑल मूव्ड टू सतयुग, व्हाट डू यू थिंक विल बी द डिफरेंस? सारे 800 करोड़ सतयुगी आत्मा बन जाएंगे. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विल गो अप. तो अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अभी 10% है या 20% है, 30% है, and when we talk of collective consciousness of 30%, we are talking of the percentage of divinity which is manifested on the planet Earth, right? So that is Kalyug. We know that 30% पे कलयुग होगा ना. फेल मार्क्स है, 40 मार्क्स तक तो फेल है, तो वो कलयुग है. और अगर 80-90 पे पहुंच गया, then you know we are moving from the त्रेता युग और we can say towards the सतयुग. तुम 2 युग की बात करते हैं, कलयुग और सतयुग की बात करते हैं, ठीक है ना? तो कलयुग में पास फेल है, 40% से नीचे है, एंड सतयुग में आप मान सकते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मेरिट लिस्ट में 90+ है. इज दैट ओके? गुड अंडरस्टैंडिंग? डोंट गो बाय द परसेंटेज, आई एम जस्ट गिविंग यू द अंडरस्टैंडिंग. तो डजंट मीन एवरीबॉडी इज एट 90% इन सतयुग और एवरीबॉडी इज एट 40% इन कलयुग. नो, कलयुग में भी बहुत लोग होंगे जो 90% कॉन्शियसनेस में है, लेकिन ओवरऑल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस 40% से नीचे है. मेकिंग सेंस? सिमिलरली इन सतयुग overall percentage is 90%, but there would be still a few people who would be below 40%.
बट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस 90% से ऊपर है मेरिट लिस्ट में, राइट? पीपल अंडरस्टैंड दिस मेरिट लिस्ट कॉन्सेप्ट। तो 90% से ऊपर है तो सतयुग में है, 40% से नीचे हैं तो कलयुग में है। क्लियर? ये तो आउटसाइड वर्ल्ड की बात होगी। एंड व्हेन वी से टुडे वी आर इन कलयुग, व्हिच मींस व्हाट? लुक एट द वर्ल्ड, क्या क्या चल रहा है वर्ल्ड में? वार, हॉस्टिलिटी, राइट्स, एजिटेशन, ट्रेजेडीज, एंड सोसाइटी लेवल पे क्या चल रहा है? मर्डर, वायलेंस, रॉबरी, डेकॉइटी, फ्रॉड, करप्शन, सब चल रहा है। दीज आर साइंस ऑफ ऑब्वियसली कलयुग। तो नो डाउट बाहर की दुनिया में कलयुग चल रहा है। Now this is a manifestation of the collective consciousness. How can we change that? How can we change that? And that brings us to the focus point of the microcosm, which is my life. So the microcosm is reflected in the microcosm. So मेरी life मेरा creation है. I am the master of my life. I am the master of my destiny. I am the master of my karma. Now this collective consciousness will be impacting my life. Definitely it will impact my life. Correct? अगर दो कंट्रीज में वार चल रहा है, हॉस्टिलिटी चल रही है, पड़ोसी एक दूसरे को मार रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, वन ग्रुप ऑफ पीपल आर फाइटिंग विद अदर ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज बाउंड टू इम्पैक्ट मी समवेयर और द अदर. So I am contributing to the collective consciousness, and in return the collective consciousness is also impacting me. In this scenario of give and take, how do you contribute to raising the consciousness in such a way that we manifest Satyug on this planet Earth? That is the discussion. So I've set the ground rules. Now you tell me what will be your contribution. What do you think should be your contribution in manifesting Satyug on this planet Earth? Though we'll be talking of 800 crore people, but right now start with inside out approach. So I will start with my life. Let us start with our life. And then we move on and expand that and see how we can contribute to the collective consciousness. Right? As healers, as spiritual healers, we all know we contribute a lot to the uplifting or raising the consciousness level of the planet Earth. Correct? So we can send energy of positive energy, positive vibration, positive healing energy to all the life forms, all the living beings, all the human beings on the planet Earth. Yes or no? Hanji, Naji, Hanji. So we can send that, and that will contribute to raising the consciousness. Yes. So all of us can contribute to the collective consciousness and raise the vibration of life on the planet Earth. Whether it be human life, could be animal life, bird life, the plant kingdom, mineral kingdom, whatever you can think of. Whatever is existing in this universe needs to raise in their vibration. But all the other kingdoms are fixed in their consciousness. Only human beings have the power to raise their consciousness. But we can protect them. We can prevent them, like trees, animals and all. We can protect them. We can save their species. We must do the take corrective action so that we can save the nature. Right? Stop polluting the nature. Prevent natural hazards which we can take care of. Like that. So now over to all of you. What do you think is your contribution to manifesting Satyug in your life and then overall on the planet Earth? And also you can look at what is that which is stopping you. What are the barriers to your manifesting Satyug in your own life first? Right? And then we will get into the discussion of what are the sanskars which are required for moving in that direction. So first let us look at what is your opinion of the situation right now and where are you? आप कहाँ पे हो? आप कलयुग क्रिएट कर रहे हो या सतयुग क्रिएट कर रहे हो? पहले तो ये देख लेना. यस, कौन बोलना चाहेंगे? Look into your life, look into your actions and see what are you manifesting. Yes, Rajiv has raised his hand. Yes, Rajiv, go ahead. I would say be honest.
Be honest, okay? Be honest with, yeah, with whatever the acts you do, actions you do, Okay. So honesty. and be loyal with your, be good to others. Okay. So being good to others, loyalty, showing loyalty to others. And the first point you said is Honest. honesty. Yeah. Honesty, loyalty, and being good to others. That is what Rajiv feels is the. So are you expressing this in your life, Rajiv? You have to Yeah, look at it very that much. way, right? Okay, good. And is Yes. there any barrier that you're facing in these when you're expressing these? Do you think there are some barriers which are stopping you in doing this? Sometimes yes, because people say you should be tit for tat, you know. But that's why, I mean, even if you are good to others, others may not be good to you. So Okay. that sometimes shakes your consciousness. Yeah. So your belief system gets shaken up when you hear the society telling you something different from this, right? What you want to do. Yes. Okay. Okay. Very good, Rajiv. We will come back on and discuss more on this. Let's take more views. Yeah. Let's acknowledge Rajiv. Very good. Yes, Gunjan ji, go ahead. सर राजीव जी ने जो कहा वो ठीक है, बट पहले मैं ये चाहूंगी कि पहले मैं अपने आप को ठीक करूं. फर्स्ट आई हैव टू फिक्स माय ब्रेन, माय माइंड, एवरीथिंग. First, I have to fix myself, then only I can fix others. Okay. So for fixing yourself, what do you Then think only is? I can contribute. Yeah, then only I can contribute. Yeah. So for fixing yourself, what do you think is required, or what do you think is missing? Look in that direction. सर मेरे को अपने विकारों पे काम करना पड़ेगा. जो मेरे अंदर विकार हैं उनको Okay. निकालना पड़ेगा. ईगो खत्म करनी पड़ेगी. सेल्फ लव में आना पड़ेगा. Okay. एवरीथिंग इंक्लूड्स इन तो इट. बैरियर्स आपके क्या कॉन्शियसनेस बोले रेज आपने? करनी. ईगो आपने कहा एक बैरियर है Yeah. जो आपको रोकता है ना? ओके. Yeah. और कुछ विकारों में और क्या है? बहुत कुछ आ जाता है सर ऐसे तो. Okay. So let's generalize this for everybody. Yeah. Thank you डर Gunjan आ for जाता है sharing that. लोगों को. अभी तो मेरे अंदर डर तो नहीं है, बट लोगों में डर है, जैसे कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए, किसी को कुछ, उनके लव्ड वंस को ना कुछ हो जाए. पैसे का डर, ये डर, वो डर. तो ऑल Okay. दोस थिंग्स. तो एक विकार है भय. Yeah. एक विकार है भय और एक आपने कहा ईगो, है ना? तो ईगो एंड फियर. बाय द वे, ईगो इज रूटेड इन फियर. इफ यू हैव ईगो, इट इज यू हैव फियर, है ना? तो इनफैक्ट लव का ऑपोजिट फेयर है. मैं कई बार ये बोलता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप देखें, योर बेसिक नेचर इज लव, बट इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग लव, देयर इज सम काइंड ऑफ फेयर, बिकॉज फेयर की जगह पे लव ब्लॉसम नहीं होता है, राइट? सो फेयर इज इंट्रिंसिक. ओनली थिंग इज वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश इट. So look at it that way. It could be fear of future, fear of uncertainty, fear of failure, fear of rejection. That one was very, very strong for me, right? So many kind of fear of death. Fear of death is normal ना, क्योंकि बॉडी जाएगी हमको मालूम है, लेकिन कब जाएगी नहीं मालूम. तो एक हमेशा एक खटका रहता है, when am I going to lose my body? Even if you are aware enough to understand that I am a soul, I have a body, but still you can lose your body anytime. So that वो थोड़ा सा तो fear रहता है, because we have not yet reached that final level of evolution where we can say aham brahmasmi in a very, very positive way कि मौत आ जाए तो आ जाए, है ना? तो fear of death is always there for many people. So rightly said, भय कॉमन है. बाकी विकार कौन से हमारे? बाकी विकार कौन से हैं जो हमको तामसिक नेचर देते हैं या जो हमको कलयुग में धकेलते हैं? आज जो कुछ वर्ल्ड में हो रहा है उसको अगर हम सम अप करें तो शास्त्रों में भी क्या कहा गया है? 6 मेजर पॉइजन्स, राइट? 6 मेजर पॉइजन्स क्या हैं? 6 विकार जो हमारे हैं. बाकी सब इसी के ऑफ शूट्स है. कौन बताएंगे? I've said that many times. सुना भी होगा आपने. कौन बोलना चाहेंगे? अंजना जी. ओके, अंजना जी, गो अहेड. काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर.
Oh, very good. Fantastic. Let's acknowledge Anjana ji. काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मद, मत्सर. Mad is actually ego, and matsar is, you can say, Right. aversion. Aversion, correct? It's not Right. Maya actually, it is mad, but that is fine, right? So all these 6 vikars, these are called in our scriptures as the 6 poisons, kleshas. इसको षड रिपु भी बोलते हैं, 6 poison जो है. So this is the crux, or this is the main force which is drawing any human being down to the level of tamas and rajas, and that takes you to the manifestation of what? Kali Yuga, right? तो अगर इनसे फ्री होना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, these are the विकास, right? इनसे अगर फ्री होना है तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है ईगो, जो मद जिसको बोला गया. तो अपने ईगो के टाइप को पहचानो, दैट इज ए बैरियर फॉर यू. ये 6 विकार कौन से आपकी लाइफ में, सारे नहीं होंगे, बट कोई ना कोई एक डोमिनेंट होगा आपकी लाइफ में, which is a driving force for your ego to get triggered, right? एंड आगे इसके और ऑफशूट्स हैं, राग, द्वेष, एवर्शन, अट्रैक्शन, भय, फियर. तो ऑल दिस विल कंट्रीब्यूट टू you getting sucked into the negativity and manifesting suffering and miseries in your life, which is a symbol of Kali Yuga. क्योंकि आज की लाइफ में क्या चल रहा है? दुख है ना, चारों तरफ दुख है. बुद्ध ऑल्सो से दुखम दुखम सर्वम दुखम, तो सब जगह दुख है. इस संसार में दुख ही दुख है, सफरिंग है, मिजरी है, फाइट्स है, वायलेंस है, सब चल रहा है ना. तो सब लोग दुखी हैं, तो दुख कॉमन है, एंड दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कलयुग, करेक्ट? तो ये तो है. नाउ व्हाट, हाउ डू यू मैनिफेस्ट सतयुग? यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, राइट? क्या करोगे? अगर इसी आपके प्लेलिस्ट में जो गाने हैं, सीडीज के फॉर्म में बताता हूँ, आप एक अगर सीडी हो और आपके पास ये 6 विकारों के गाने चल रहे हैं, तो यू विल ओनली मैनिफेस्ट कलयुग इन योर लाइफ, राइट? आपके सारे गाने कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर. यानी कि आप एक ही टाइप के गाने सुन रहे हो, एक ही टाइप की पिक्चर देख रहे हो. ट्रेजिडी, 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 राइट? So let us give that label of no partiality for the singers, but let us say that is all songs of Mukesh. ठीक है जी? तो आप मुकेश के गाने सुने जा रहे हो, या जगजीत सिंह के गजल ऐसे लगता है कि सारी दुनिया हमें छोड़ के चली गई है. हाँ, तो लेट्स टेक दैट जगजीत सिंह. तो जगजीत सिंह के गजल सुन रहे हो आप, तो आपका पूरे सीरियस, पूरे ट्रेजिडीज मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में. क्लियर है? यू कैन अंडरस्टैंड द कंपैरिजन. So now only Kali Yuga is being manifested in your life. Tragedies, suffering, miseries. You are living the life of a victim, right? Clear? Everybody can connect with this? Just show me your hand if you can connect with this. Yes, good. Now what you have to do? आपको अपने सीडी में कुछ नए गाने बजाने पड़ेंगे ना, कलयुग को हटाने के लिए. सतयुग के गाने बजाने पड़ेंगे. Yeah. क्या करोगे? जी. गाने रिकॉर्ड करने की जरूरत है, नई सीडी लाने की जरूरत है. क्या आपको लगता है कि ये आपके अंदर ऑलरेडी है ये संस्कार? Yes, let's hear from Ankit Mishra ji. Ankit Mishra ji, welcome. Namaskar. Good to see you back, sir. नमस्कार सर. हाँ जी, बताइए. नमस्कार सर. बोलिए सर, आप शेयर करना चाह रहे हैं कुछ? हाँ जी, जो सर हम विकार की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था जो हमारे विकार हैं, तो वो विकार तो हमें अपने आप को, खुद को, स्वयं को देखना है, सचेत रहना है. जब भी विकार आया उसको देखना है, अरे भाई विकार आया, क्रोध आया या लोभ आया या जो भी हमारे विकार है, तो एक उसका एक है कि जो उसका उपाय है, फटाफट सांस को देखो. बिकॉज जैसे विकार कुछ आता है ना, हमारी सांस से पता चल जाता है. थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश कर. थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जब क्रोध आता है तो हम देख थोड़ी पाते हैं कि क्रोध आया, लेकिन फिर और सचेत होके हमें देखना पड़ेगा कि हाँ ये है. तो क्या होता है कि बस उसका एक ही उपाय है कि हम कोई भी चीज है उससे कटुता ना पाले.
हम कटुता ना पालें। जो भी है, अगर जीवन में अगर जीवन दिया है तो कर्म योग तो करना ही पड़ेगा, किसी भी योग में रहे कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो बस कोई कर्म को वो हम लोग ना, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई इच्छा मत करो, लेकिन इच्छा ना करके थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमें अपने आप को स्वयं देखते रहना है कि वो करते रहना है और बस एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो मूल स्वरूप तो ये है कि आपको करते रहना है और न्यूट्रल रहना है, बस वो वीडियो गेम खेलते रहना है अपना अपना जो वीडियो गेम है लाइफ का, वो खेलते रहना है। तो आप जब वीडियो गेम खेलते रहोगे तो फिर अपने आप को आप नॉर्मल करते हो, तो सतयुग भी फिर आप कटुता, जिस दिन आपने कटुता अपने अंदर हटा दी ना, तो आप एक एटलीस्ट आपने सिग्नल दे दिया सतयुग का। वेरी गुड अंकित जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। लेट्स एक्नॉलेज अंकित जी, वेरी गुड। और कुछ ऐड करना चाहेंगे सर, और इज इट ओके फॉर राइट नाउ? Okay, let's hear from somebody else. Yes, Komala ji, go ahead. नमस्ते, मेरा नाम कोमला है। एक्चुअली लोग सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में अभी आजकल संगम युग चल रहा है, क्योंकि मैं 21 ईयर्स से थोड़ा कुछ मैं योग और मेडिटेशन सब कुछ करे थे। फर्स्ट लोग में डर पहले रहते, डर अपन में से जब निकल जाएंगे ना, सो आदमी आगे बढ़ जाएंगे। डर किस लिए बोले तो अभी पढ़ना बोल के समझो, कुछ करना बोल के समझो, कुछ आगे बढ़ना है बोले तो घर वाले समझो, बाहर वाले समझो, जो भी है डर डाल देते अपन में। सो वो डर निकलना। सेकंड, मोह बोलते स्वार्थ हर एक में। जैसे छोटे बच्चे पैदा होते बहुत पहले प्योर होते, जैसे 6 साल से वो आगे बढ़ते हैं, उसमें मेरा 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 जब आ जाते ना, सब मेरा मेरा में दुनिया पूरा मेरा बोल के वो माया आ जाते, वो सब चले जाना पड़ेगा। सो चले जाना बोले तो जैसे फैमिली में बड़े लोग पहले भक्ति योग सिखाना पड़ेगा। भक्ति योग आजकल कलयुग में सो टाइम नहीं रह रहा, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गए, हर एक भी फास्ट चले जा रहे, बच्चों को कैसा सिखाना नहीं मालूम हो रहा। ये सब जैसे 50 साल पहले का लाइफस्टाइल, अभी अपन का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंस, ला फास्ट 20 ईयर्स से बहुत चेंज हो गए। लेकिन अभी अपन चेंज करना बोले तो पहले अपन के ऊपर अपन आत्मविश्वास बहुत करना पड़ेगा। बोलते खुद में आत्मविश्वास नहीं है, ये कर पातूं या नहीं कर पातूं, ये जॉब कर पातूं या नहीं कर पातूं, सो खुद में ही सस्पेंस में है, सो वो आगे नहीं बढ़ जाएंगे। सो वो पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट 100% आ जाना पड़ेगा, जब ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड वन इज, लोगों को जो लोग है कोई करना चाहे तो पीछे खींचते अपन के दुनिया में, ये कलयुग में तो पीछे क्यों खींच रहे बोले तो वो आगे नहीं बढ़ना बोल के। दुनिया में हर एक भी जो भी घर वाले समझो, बाहर लग समझो, पॉलिटिकल भी समझो, ये आगे नहीं वो आगे नहीं, ये सब समस्या स्थिति में आना बोले तो पहले अपन में अपन का अपन, क्योंकि मैं तेलुगु ज्यादा बात करता हूँ तो इसीलिए हिंदी में मुझे वर्ड्स पहले माफ कर देना, मैं कुछ गलत बात बोले तो रॉन्ग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक है तो माफ कर देना। तेलुगु बोले तो प्योर तेलुगु इधर जबरदस्त में आप लोगों को सब, क्योंकि 21 ईयर्स एक्सपीरियंस है, बचपन से मेरे में तड़प था, ये क्यों ऐसा कर रहे, ये क्यों ऐसा कर रहे, क्यों ऐसा कर रहे बोल के। सो करते 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 जिंदगी में घर वाले में, पहले अपन के घर में लोगों को पहचान नहीं पा रहे अपन, या माँ बाप को, या ब्रदर को, या हस्बैंड एंड वाइफ को, या चिल्ड्रन को। ये खुद के घर में 5 लोगों 5 उंगली के जैसे अलग अलग मेंटालिटी से आते, माँ को बेटा नहीं समझते, बेटा माँ को नहीं समझते। सो वो समझ का अवगाहन आना बोले तो मैं जो जिंदगी में सीखते सीखते, क्योंकि आज बात कर रहा हूँ बोले तो ना बुक्स पढ़ के ना वो नहीं करके, खुद मेडिटेशन में मैं जागृति हो गई कि क्योंकि मैं बड़े नहीं बोल रहा हूँ, उसमें यूनिवर्सल से छोटा सा छोटा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, वो आंसर आ जा रहा मुझे। कैसा आ रहा बोले तो अभी मैं श्वास ले तुम ना, इस श्वास के अंदर में जो भी है मैं बाहर छोड़ दे रहा हूँ, दुनिया में छोड़ रहा हूँ। नॉट ओनली मेरे जगह पे हैदराबाद में जो बात कर रहा हूँ, मैं एक एरिया में बात कर रहा हूँ, नॉट पर पूरा वर्ल्ड यूनिवर्सल मेरा
ये छोड़ रहा हूँ, ये अपन को नहीं मालूम है, लेकिन इतना नॉलेज भी नॉट नेसेसरी एवरीबडी, बट जो अंदर ले रहे अपन, जो हर एक रोम 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 भी वो अंदर जाएंगे, वो फिक्स हो जाएंगे बॉडी में, फिक्स होते ही वही फिक्स समझ ले रहे। लेकिन वो आदत अपन साधना करते 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 इतने सालों में, 21 साल में लिटिल बिट होके, फिर भी मैं संसार में हर एक बार भी करता हूँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अपोजिट लोगों को करके एवरीबडी वो क्यों ऐसा कर रहे। ईगो, मैडम ने बोले, जो भी बोले, ईगो इज अ मस्ट। अभी मेरे पे भी अहंकार होंगे, आप समझते ये अभी जो सुन रहे ना लोग समझते ये क्या बड़ी बात है, इतने से बोल रहे, बोल के अंदर खुद के कुछ समझ लेते। नो, वैसा नहीं, जो मेरा नॉलेज है आई विल शेयरिंग, मैं शेयर कर रहा हूँ। सो पहले अपन में स्वार्थ चले जाना, पाई चले जाना, बोले तो डर डर, जो भी अपन मन में जो चाहते आ जाते, मैं ये करने का है लक्ष्य, जो लक्ष्य बोलते नॉट में लाइफस्टाइल का लक्ष्य नहीं, जो भी मैं ये करने का है ना, बिल्कुल डरना नहीं, ये अच्छा या बुरा खुद के बैलेंस करके आगे बढ़ना पड़े। वो बच्चों में बचपन से जो अपन कॉन्फिडेंस दिए तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। और जो चेंज होना बोले तो दुनिया इतना जल्दी एट ए टाइम, जो भी एक कट्टा एक कट्टा एक कट्टा बने तो भी किसका इसका देख के और एक और एक और एक, आजकल में ग्रुप्स 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 बन के वो किस लिए कर रहे, किस बात के लिए करे, खुद को नहीं मालूम। Very good, very Exactly. good, Komla बोले ji. तो I will come back to you on this. No. Yeah, thank you very much. Let's acknowledge Komla ji. या Very good. या अपन मैं Yeah. इतना टाइम नहीं लेना, सो अपन नहीं, में कोई बात नहीं, भक्ति हम दोबारा होना, आते हैं आपके पास। बेसुध नहीं होना, ईगो नहीं होना। सो कोमला मैं जी, आगे आगे कोमला जी, अल्लू अल्लू we will शेयर come करूंगी। back to थैंक you. यू, We will Thank come you, back to you. thank हम you. दोबारा आपके पास आते हैं, ठीक है जी। Thank Thank you very much. Yeah. थैंक Let's यू सो acknowledge मच। कोमला जी for that. And थैंक बहुत अच्छी बात बताई कोमला जी ने। एंड दो तीन चीजें बहुत पावरफुल हैं इसमें। We have to understand what she has said. कि the self confidence as in a child is very very important for the proper growth, the spiritual growth of the child. Very very powerful. Correct? Now how do you get the self confidence into the child? मार्केट में तो नहीं मिलता है, कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस? थिंक। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो हमारे विकार हैं, ये हमको नीचे खींचते हैं। करेक्ट? एंड दिस इज इन एवरीबॉडी। सो द होल कॉन्शियसनेस ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो नीचे गिर रहा है। एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में चाहे हमारे माँ बाप हों या घर में भाई बहन हों या बाहर की दुनिया में पड़ोसी हों या टीचर्स हों, ये सब बच्चे के ऊपर सोशल कंडीशनिंग बोलते हैं हम लोग। सोशल कंडीशनिंग की वजह से द चाइल्ड डजंट गेट द राइट नर्चरिंग ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। नोबडी टेल्स हिम दैट he is wonderful, he is divine, he is something great. No, everybody tells him you are small, you are weak, you are stupid. बाहर से ऐसे कमेंट सुन के आ रहा है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा उसका? So we have to understand, we have to do something different. What is this different to be done? Now let us look at what is common in all human beings. What is there in the संस्कार्स? संस्कार्स के लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो संस्कार्स के लेवल पे क्या है हर एक ह्यूमन सोल में जो कॉमन है? हमारी पास्ट लाइफ से जो कंडीशनिंग हो रही है वो डिफरेंट है। एवरी सोल इज डिफरेंट इन देयर पास्ट लाइफ्स। यस, एवरी सोल हैज जेनेटिक हेरिडिटरी ट्रेट्स which are different. Yes, correct. सोशल कंडीशनिंग हर एक की अलग अलग है। सेम सिचुएशन में भी two different children who are brothers will go through different stage of conditioning. Yes or no? Same incident पे घर में माँ बाप एक ही जैसा बिहेव कर रहे हैं, पर दो भाई बहन अगर होंगे या दो भाई होंगे, उन दोनों का इम्पैक्ट दोनों पे अलग अलग होगा। I can give you many illustrations or many situations like this, but right now you need to understand the point. हर सोल का अपना एक जर्नी है और उसके हिसाब से उसके संस्कार बन रहे हैं। कुछ वो पास्ट लाइफ्स की जर्नी से लेके आए हैं, कुछ वो हेरिडिटरी लेके आ रहे हैं, और कुछ जो जेनेटिक कर्मा हम बोलते हैं। तो कुछ पास्ट लाइफ्स कर्मा है, कुछ जेनेटिक कर्मा है, कुछ सोशल कंडीशनिंग के कर्मा है। तो इन सब से संस्कार हमारे बन रहे हैं। तो 3 सेट ऑफ संस्कार तो हमने देख लिए। ये तीनों डिफरेंट होंगे हर एक के लिए। जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे भी ये सारे संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन हमारा एक सेट ऑफ संस्कार कॉमन है। क्या है वो?
Anybody who wants to make an attempt? Love, Huh? What is that? love, No, set of love. संस्कार बोल रहा हूँ मैं. You're right. Love is one of them. Love is one of them. Love is there in all the human souls. So this is one of the sanskars. But what is that set of sanskars which we are all having in common as a human being? If you are a human being, you have that sanskar. ये क्या बोलते हैं हम इसे? इसको हम बोलते हैं सच्चिदानंद। सतोगुणी आत्मा जो है उनके सतोगुणी संस्कार, which is common for everybody. हम सब souls हैं? Yes, human souls. So human souls का एक set of divine संस्कार हैं हमारे अंदर, क्योंकि हम divinity का अंश हैं. क्या है ये संस्कार? As Gunjan ji said, first one is love. I'm a loveful soul. दया करुणा Yes. जो आगे लोग भी प्यार करना, तो लव तो मैडम बता दिए. ये जो भगवान में जो है अपन नहीं देख के भगवान को मानते, जो अच्छा बात है वो सब अपन में कोई देखे तो दुख है तो किसी को भी अपन क्या बोलना बोले तो जो अपन उनको सैक्रिफाइस करके उन पे देना करुणा से जो भी है. कोमला जी एक चीज So- बोलूंगा मैं. कंपैशन इज नॉट इन एवरी सोल, इट हैज टू बी नर्चर्ड. लेकिन कुछ संस्कार हैं जो कॉमन है सब में. मैं अभी कॉमन संस्कार की बात कर रहा हूँ. कंपैशन हर एक में नहीं होगा. यू कैन सी मेनी सोल्स हु आर नॉट कंपैशनेट, राइट? So let us look at the first common ones and then we will build on that. Compassion is an offshoot of these divine sanskars. तो सतोगुणी आत्मा के जो सतोगुणी संस्कार हैं हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं अभी. तो love is somebody, love is there as an intrinsic nature. So love is one. Peace, I am a peaceful soul. Shanti. Power, शांति, ओम शांति. power, शक्ति. I am a powerful soul. ये सोल का बेसिक नेचर है. ये सतोगुणी आत्मा के सतोगुणी संस्कार हैं जो हर एक के अंदर हैं. इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हैं. इनको इमर्ज करने की जरूरत है, इसको इन्वोक करने की जरूरत है, राइट? तो जैसे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, वैसे ही हमारे अंदर ये दिव्य संस्कार भी हैं. लव, पीस, पावर, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, नॉलेज और विजडम, ये हर सोल में है. ये दिव्य संस्कार जो हैं ये हमको हेल्प करेंगे सतोगुणी आत्मा बनने के लिए, और सतोगुण से हम मैनिफेस्ट करेंगे सतयुग हमारी लाइफ में. तो एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? डिवाइन संस्कार ये इन्वोक करना है, ऑलरेडी क्रिएट नहीं करना है. दिस इज ऑलरेडी देयर. जस्ट लाइक यू हैव पास्ट लाइफ संस्कार्स, यू हैव हेरिडिटरी संस्कार्स, यू हैव सोशल कंडीशनिंग संस्कार्स जिनसे हमारे तामसिक और राजसिक नेचर ट्रिगर होते हैं, वैसे ही हमारे पास ये डिवाइन संस्कार्स हैं. पर ये डोरमेंट हैं क्योंकि इसको आज तक किसी ने इन्वोक नहीं किया. तो हमको अपनी विल पावर से, नाउ यू कैन कनेक्ट फ्री विल मैनिफेस्टेशन, राइट? अपनी विल पावर से हमको ये वाले संस्कार इन्वोक करने, and that will invoke the divinity in us and that will invoke the satyug in our life. Making sense? तो अपनी विल पावर से हम ये कर सकते हैं. अगर हमको मालूम होगा ये हमारे अंदर संस्कार हैं. अब क्या मैंने कहा, पहले मुकेश के गाने सुन रहे थे, एडिंग सम ह्यूमर टू इट. नाउ लेट अस हियर द सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार, याहू, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू सिंग सॉन्ग्स ऑफ लव, पीस, पावर, हीरो. कोई ट्रेजेडी नहीं, अब सिर्फ कॉमेडी, हैप्पी एंडिंग, ऐसे वाले गाने और मूवीज क्रिएट करेंगे हम. तो ये सतोगुणी संस्कार क्रिएट होंगे, क्रिएट नहीं, इन्वोक होंगे. हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह को सिर्फ देख के छोड़ना है, जैसा अंकित जी ने कहा. देखना है सिर्फ, और उसको एक्टिवेट नहीं होने देना कि नहीं मेरे को ये गाना नहीं सुनना. अब मान लो प्रैक्टिकली मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, मुकेश का कोई गाना आया,
दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। आप तुरंत बोल दो ये गाना मैंने बहुत गा लिया, आज के बाद नहीं गाऊंगा। कौन सा गाना गाऊंगा? किशोर कुमार का कोई गाना बोलो। जिंदगी ये सफर है सुहाना, करेक्ट। प्यार मिला, इकरार वो भी मिला, जो भी तो गाना वो गाओ। क्या गाना है होगा? ना, कुछ नहीं। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जिंदगी जीता है पल एक पल, इसे रोना नहीं, इसे कोई गाना है, जिंदगी हाँ, हंसने गाने के लिए है पल दो पल। बढ़िया मैं है ना। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वेरी गुड, आ गए ना सारे गाने बाहर। हम्म। तो वैसे ही अपने दिव्य संस्कारों को भी गाना गाने के जैसे ही करना है। पुराने गाने नहीं गाने, रोने धोने वाले गाने नहीं गाने, ट्रेजेडी मूवीज नहीं देखनी, मेरे को कॉमेडी मूवी देखनी है, मेरे को ये प्यार भरे नगमे सुनने हैं। तो आप सतोगुनी आत्मा के सतोगुनी संस्कार को इन्वोक करेंगे। कितने लोग पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी विल पावर के साथ ये कर सकते हैं? रेज योर हैंड्स। दिस इज हाउ यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ले लिया, अब अपनी विल पावर से यही गाने सुनने। दूसरा गाना जैसे ही आएगा बोलो स्टॉप, आई टोल्ड यू नॉट टू लिसन टू दिस सॉन्ग, क्लोज इट, प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग। अपनी प्लेलिस्ट को चेंज करना है। ये गाने आपके पास हैं ऑलरेडी, ये आपके संस्कार हैं, नए कुछ क्रिएट नहीं करने। सिर्फ ये वाले गाने जो आपने आज तक नहीं सुने उसको सुनना शुरू करना है, करेक्ट। और उसके लिए कैसे कर सकते हो? अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो देयर आर मेनी न्यू सीरियल्स व्हिच आर कमिंग अप। हाँ, आप अपने नेटफ्लिक्स को छोड़ के श्रीमद् रामायण देख सकते हैं, महाभारत देख सकते हैं, भगवत गीता के प्रोग्राम सुन सकते हैं। इनफैक्ट आई रिमेम्बर समवेयर इन 89-90 देयर वाज ए बी.आर. चोपड़ा की महाभारत सीरियल, राइट। एंड द भगवत गीता सेशंस, जो उसमें लेक्चर था या जो भी उसमें सेशंस था, तीन एपिसोड्स में थे। एंड आई हैव एक्चुअली टेकन आउट दोस 3, सेव्ड इट इन माय प्लेलिस्ट, और मैं उसको हर दूसरे तीसरे दिन सुनता हूँ। So it is a quick recap for me. 3 episodes of Bhagavad Gita ज्ञान in that whole episodes of महाभारत मैं पूरे नहीं देखता, मेरे को जो चाहिए मैं वो उठा के रखता हूँ, सेव करता हूँ। And I've started listening to that. I've started watching Srimad Ramayana. I was just sharing that with Gunjan in the evening today. It's a wonderful serial. बहुत ऐसी चीजें थी जो पिछली बार रामायण में नहीं दिखाई गई थी, या मेरे को कई चीजें, मेरे को भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी। लाइक हाउ मेनी ऑफ यू नो एक्चुअली द बैकग्राउंड ऑफ रावण, that is also shown here. So it was very enlightening for me, kind of a thing. I was really, I am actually very keen to watch that. ये सेशन खत्म होने के बाद मैं अभी 2 एपिसोड उसके देख के सोऊंगा, right? So you have to watch the serials which will invoke that divinity in you. Netflix, or I'm not saying don't watch that, but that are not going to create any, activate any satoguni sanskar in you. You have to pick up actions which will invoke that divinity in you. And very rightly said Komala ji, breath work, आपका प्राणायाम, आपका मेडिटेशन, ये आपको लेके जाएगा हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। दिस इज व्हाट विल इन्वोक द डिविनिटी इन यू। आपकी साधना क्या है? आपका सत्संग, आपकी सेवा, ये आपके दिव्य क्वालिटीज को उजागर करेगा। एंड देन यू विल मूव ऑन द पाथ ऑफ इन्वोकिंग द डिविनिटी इन यू, मैनिफेस्टिंग सतयुग इन योर लाइफ। Okay, so again, I will stop a little bit and take some sharings. तो कौन बोलना चाहेंगे? A.K. अग्रवाल जी, ओके। उसके बाद आते हैं कोमला जी, आपके पास आते हैं उसके बाद। यस यस हाँ जी, अग्रवाल जी, नमस्कार जी। हाँ जी, मैं अनिरुद्ध कुमार बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार नमस्कार जी। ये मैंने आज मैं मोबाइल से बोल रहा था, ये आपका बहुत अच्छा रहा कि ये हमें अपना, आपने जैसे कहा कि सतयुग लाने के लिए कैसे लाना चाहिए। तो कॉन्शियस लेवल जो है, डिविनिटी लेवल है, एक्शन जो है, इनके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा, गुड वैल्यूज लानी पड़ेंगी, इन पे एक्शन करना पड़ेगा। राइटली यू हैव सेड कि इसके बगैर आना मुश्किल है। परंतु मैं इसमें 1 मिनट 2 मिनट लेना चाहता हूँ, जो मेरे अपने विचार हैं इसमें, कि इसका रीजन जो मुझे लगता है कि अब जो पुराना युग था, फिर उसमें दूसरा जो भी युग आए हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ती गई है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, अपन तो रिसोर्सेज हमारे सेम ही रहे हैं, जितने पहले थे उतने आज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ने से कंपटीशन बढ़ गया। द्वापर जो भी युग हैं, ग्रीड बढ़ गई, उसके साथ ईगो बढ़ गई, कन्फ्लिक्ट हो गए,
कंपेयर टू द पास्ट। तो उससे जो का पॉपुलेशन से जो है हमारा बढ़ गया। अब क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो काम किया। पहले हम आग जो है फायर स्टोन से लगाते थे, आज हमारे पास बहुत अच्छे साधन हो गए। पहले बैलगाड़ी में जाते थे, आज हम एरोप्लेन में जाते हैं। परंतु हमारे कन्फ्लिक्ट और स्पिरिचुअल वैल्यूज में गिरावट आई है, कन्फ्लिक्ट ज्यादा हो गया, स्पिरिचुअल वैल्यूज में गिरावट आई है। इसका मैं समझता हूँ इसके दो रीजन, इसका सोल्यूशन दो में है। एक तो पॉल्यूशन कंट्रोल को हमें कंट्रोल करना होगा, दूसरा जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूज करना होगा। रिसोर्सेज जैसे हमारा वाटर है, इन्वायरमेंट है, मिनरल सोर्सेज हैं, ऑयल है, इनका प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी पॉपुलेशन कम हो जाती है वो प्रॉपर यूज कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों करने से हमारा कंपटीशन कम होगा, ग्रीड कम होगी, ईगो कम होगी, कन्फ्लिक्ट कम होंगे, सोशल जस्टिस बढ़ेगा, बेटर एजुकेशन होगी। उधर अगर हम रिसोर्सेज को करेंगे तो क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉल्यूशन और ये पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल वगैरह पे अच्छे काम हो जाएगा। और इन दोनों के साथ साथ जब ये चीजें होंगी तो हमारी जो वैल्यूज हैं, इथनिक वैल्यूज हैं, वो भी अपर लेवल में लाएगी, नो डाउट। उसके साथ साथ हमें सबको कॉन्शियस लेवल तो बढ़ाना ही होगा। तो इन सबको तीनों का मिक्सचर, कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना है, रिसोर्सेज को ठीक तरह से यूज करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। आई फील वी विल बी इन द सतयुग। एब्सोल्युटली परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध जी ने आगे के एक्शन प्लान बता दिए। मैं तो अभी बेसिक लेवल पे चल रहा था कि पहले अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, उसके बाद आप यही सब करेंगे जो इन्होंने अभी बताया, विच इज इन द मैक्रोकॉस्म। आज मैं मैक्रोकॉस्म की बात नहीं कर रहा था, आज मैं सिर्फ माइक्रोकॉस्म की बात कर रहा हूँ कि अपने अंदर हमको क्या चेंजेस लाने हैं, सो दैट वी कैन बी लेइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर सतयुग मैनिफेस्टेशन। तो आज हमारा एजेंडा ये था, लेकिन अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा बताया कि आगे चल के हमको कंट्रीब्यूशन के लेवल पे सोसाइटी या ह्यूमैनिटी के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। यस, एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? कोमला जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल तो मैं एक बिजनेस चला रहे थे, उसमें लोग जो भी आते इतना डर से करते, वो लोग एटीट्यूड बिल्कुल चेंज ही नहीं होंगे। सर बोले से जैसे पहले वो लोगों का एटीट्यूड चेंज करना, वो लोगों को ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लाए तो। और मनी के पीछे अभी हमारा जिंदगी कैसा जाते, कैसा करना, कैसा लिविंग, वो थिंकिंग इज अ चेंजिंग होना पड़ेगा ज्यादा। सबका दुनिया में सबका, मैं मेरे एक्सपीरियंस में एग्जैक्टली मैं 25 साल से स्मॉल व्यापार कर रहा हूँ। सो लोगों का मेंटालिटी आगे ही बढ़ रहे नहीं बोले तो, एम्प्लॉयमेंट का भी चेंज क्यों हो रहा बोले तो, दुनिया में ऑलवेज स्मॉल स्केल से बोले तो, स्मॉल एम्प्लॉय बोले तो एक 6,000 के काम के लोगों से 6 लाख समझो, 6 करोड़ समझो लिए, सो लोगों का भी एटीट्यूड में चेंजिंग आना पड़ेगा बिल्कुल। वो कैसा आना बोले तो, मैं समझ रहा हूँ वो लोगों का एटीट्यूड खाली अपन के काम नहीं करके बिना करके आ जाना बोल के, वो लोगों का एटीट्यूड मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो लोगों का थिंक में चेंज होना, थिंक में कैसा चेंज होना बोले तो, ओके कोमला जी, आई विल हैव टू आप स्टॉप लोग यू। बड़े लोग मैं हैं, थोड़ा सा बता आपको सकते रोकूंगा, आप ही। आई विल हैव टू ओके स्टॉप यू सर। लिटिल बिट, क्योंकि अगर हम औरों के बारे में बोलेंगे उनको ये करना चाहिए, तो वो हमारा एजेंडा आज का नहीं है, कुछ चेंज इसीलिए राइट? फर्स्ट मैं चेंज होते आए, नहीं नहीं और उनका चेंज नहीं। मेरे एक्सपीरियंस में लोगों के बारे नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के किसी के बारे में, कुछ चेंज होते आए। तो कुछ चेंज करते आ रहे तो सब बहुत आसान दिख रहा, बहुत इजी हो गए, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते जा रहे हो। अचानक आपके जैसे जैसे बड़े लोगों का भी इंट्रोडक्शन हो रहा बोले तो, मेरे खुद के ऊपर चेंज आ गए। मैं वेरी गुड, बिल्कुल किसी बहुत बढ़िया। बाजू लोगों का नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप सब लोगों को आज देख सक रहा हूँ, बात कर सक रहा हूँ, इतना मेरे को आह्वान करे। सो रियली इज मेरे ऊपर चेंज आ गए, बहुत बहुत सा बढ़िया, चेंज, ऐसा बहुत बढ़िया सब में कोमला चेंज जी। आना And this बोल is के what सोच we want, this is what we want, बस। that the change has to be brought in our life first, and then we become a leader for Yeah. 100 people in our life and take them on. उनको हम फिर लीड करें, Yeah, thank you. पहले अपने अंदर वो बदलाव लाएं, और फिर अपने अंदर लाने के बाद हम 100, 200, 300, 500, 1000 जितने लोगों को हम गाइड कर सके, उनको गाइड करके आगे लेके जाएं। दिस इज हाउ वी स्प्रेड द लाइट, बट मेरे फर्स्ट द लाइट हैज टू मेरे बी। घर वाले पे पहले चेंज हो गए सर, मैं टोटली मेरे घर का सब
वेरी बहुत गुड, वेरी गुड ही कोमला जी, हर एक में कोऑपरेट हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक तो यू अभी जी, आगे बढ़ जा रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सो यू हैव टू फर्स्ट enlighten yourself in the sense that you have to light the light in you. आपके अंदर लाइट जलनी चाहिए और फिर वो लाइट आप रेडिएट करेंगे बाकी लोगों की तरफ ताकि आप उनको गाइड कर सकें, right? So that is the approach that we want to share. Let's have some more sharing from other people. Ankit ji, you have raised your hand again. Anything you want to share? Yes, sir. Hmm. Yes, sir. So basically, you're saying that there should be another music which should bring it on. Always you have to bring it on. So I just share my journey when I was in college. So college में मैं थोड़ा मतलब I was very motivated guy. So I'm a sensitive guy previously, very sensitive. पल किसी को देख के दुख जाना, किसी को देख के जाना। सो जब कॉलेज हो गया तो कुछ यूट्यूब पे कुछ म्यूजिक सुना। एम आई ऑडिबल? थोड़ा सा अमित जी आवाज आ रही है सही? हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अब आ रही है शायद, पहले थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग हाँ रहा जी, था, हाँ अब जी। ठीक है। हाँ। मैं पहले जब कॉलेज में था बहुत सेंसिटिव था और मतलब मैं लोगों को देख के खुश हो जाता था, लोगों को देख के मतलब दुख हो जाता था मुझे। तो मुझे ऐसा क्यों हूं मैं? सो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। और आई एम स्टे इन मुंबई, तो आपको मुंबई का लोकल तो पता ही होगा, ठीक है? सो वहां पे मतलब भाग के दौड़ के पकड़ते हैं और आपको अगर सीट, और वो भी ग्रुप रहता है, अगर आपने छोड़ दिया तो आपको वो उतार देंगे। सो आई यूज टू हैंडल दिस काइंड ऑफ पीपल। तो ठीक है, वो मुझे ठीक है, बिकॉज वो दैट्स अ कंडीशनिंग फॉर देम। मेरे लिए कंडीशनिंग अलग थी, उनकी कंडीशनिंग अलग थी। सो मैं यूट्यूब पे मैंने कुछ रिसर्च करता रहता, तो मैंने ना एपिक म्यूजिक देखे, वेयर ऑल काइंड ऑफ एपिक म्यूजिक आते हैं यूट्यूब पे, आप भी सर्च करना सब लोग। इसमें एक ऐसे मतलब मोटिवेशन म्यूजिक रहते हैं, जैसे ऐसा दिखाते हैं जैसे वॉरियर रहता है, चीजें करता है। तो मैं जब जाते या हैप्पी म्यूजिक सुनता था, ऐसे ऐसे मैंने रिंगटोन्स खुद के बना लिए। तो मैं जाते टाइम मैं अपना मूड सेट करता था कि भाई आज मेरा हैप्पी मूड है तो मैं ये म्यूजिक सुनूंगा, और मैं खुश हो जाता था। और अगर मुझे कुछ क्रैक करना रहता तो मैं एपिक मोटिवेशन म्यूजिक सुनता था, और मैं म्यूजिक सुन सुन के लोगों से बात कर सकता था, बिकॉज मैंने अपनी खुद की फिल्म बना ली कि ये मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक और मैं हीरो, और मैं ये चीज करूंगा। तो मेरा बैकग्राउंड में ऑलरेडी वो म्यूजिक बजता रहता था और मैं चीजें क्रिएट करता रहता था। तो मैंने इस तरीके से अपने आप को ढाला कि अगर मैं इससे सेंसिटिव हूँ तो मेरा एडवांटेज ये, ना कि निगेटिव मतलब डिसएडवांटेज। वेरी गुड, तो वेरी गुड। ऐसे करके मैंने, हाँ, तो ऐसे करके अपने म्यूजिक को मैंने इस तरीके से, जैसे आपने बताया ना कौन सा गाना बजाना है हमें ये पता होना चाहिए। तो इन माय कॉलेज डेज आई स्टार्टेड, सो ऐसे मैंने कुछ लोगों को ट्रेन भी करना शुरू किया। तो दे रियली एंजॉयड, कि हाँ ये तो काम कर रहा है। तो दैट्स माय जर्नी। तो म्यूजिक आई रियली फेल्ट कनेक्ट ऑन इट कि हाँ ये तो चीज मैं भी कर रहा था। वेरी गुड अंकित जी। Let's acknowledge थैंक Ankit यू। ji. Wonderful, wonderful sharing. Yes, Sanjana ji, you have raised your hand. Please go ahead. सर मैं तो बहुत सालों से मेडिटेशन ही किया है, तो मेरा तो यही है कि हु एम आई कॉन्सेप्ट पर हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को आत्मा के स्तर पर जाने कि हम सब यहाँ पर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हैं। तो जब हम आत्मा के स्तर पर काम करेंगे और रोज मेडिटेट करेंगे, तुम खुद को जान पाएंगे, अवेयरनेस आएगी। और रोज स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, बुक्स पढ़ें, बहुत सारी सोल की बुक्स हैं, विजडम की बुक्स हैं। जब खुद की नॉलेज होगी तो अपने आप कर्म का जो सिद्धांत है वो आपको समझ में आने लगेगा कि हम कौन से स्तर पर हैं। तो हमारा काम ही यही है कि हम खुद मेडिटेट करते हैं, दूसरों को मेडिटेट सिखाते हैं, ताकि उनकी भी सोल प्रोग्रेस हो, वो भी ग्रोथ करें, लर्न करें, इवॉल्व करें। तो यही उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं, खुद भी स्वाध्याय करते हैं, दूसरों को भी स्वाध्याय कराते हैं। काफी सारे बुक्स का हम शेयर करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं। तो हमारा जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, यूट्यूब का चैनल है PMC, 5 से 6 बजे हम रोज मेडिटेट करते हैं। तो बहुत अलग अलग ग्रुप से जुड़कर, ग्रुप मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन। तो हम, हमारा जीवन सब इसी में है। तो मेडिटेशन के फिर हम गिफ्ट्स भी लेते हैं, जैसे कि अब इतने साल हो गए तो हम एस्ट्रल ट्रैवल, थर्ड आई, और मैं जैसे टेलीपैथी करती हूँ, आकाशिक रीडिंग करती हूँ।
तो ये सब करके इतना आनंद लगता है कि भगवान और भी लोग इसमें क्यों नहीं इवॉल्व होते। कितने सारे तो ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं मेडिटेशन के। अगर रोज भी अगर मेडिटेशन अगर आधा घंटा भी प्रैक्टिस करें तो जो ब्लिस है वो तो कम से कम ले ना। एवरीबडी बी ब्लेस्ड विद वन ड्रॉप ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑन दिस अर्थ। यही मिशन है हमारा कि हर एक को वो वन ड्रॉप ऑफ स्पिरिचुअलिटी मिले। तो मेडिटेशन से स्टार्ट करें और रोज आधा घंटा करें तो आप भी देखेंगे हर एक के जीवन में सतयुग तो है ही। बस थोड़ा सा एक प्रयत्न करना है कि संकल्प लेना कि मुझे आधा घंटा रोज मेडिटेशन करना है। Fantastic. Very good, Anjana ji. बहुत बढ़िया. Let's acknowledge Anjana ji for that. And this is actually how you need to practice your activating your sanskars. Just as I said, breath work, which is pranayam and meditation, is the only way to purify your mind or cleanse your chit and take you take you forward in your spiritual journey and raise your consciousness to the level where you can manifest Satyug in your life and in the lives of people who are in your life. Yes, very good. बहुत बढ़िया. Okay, anybody else who would like to share? कौन बोलना चाहेंगे? Amit ji, anything you want to share on Satyug manifestation, Nothing, your no. experience? No, I think enough has been said. It's a very huge topic of Satyug, and Satyug itself comprises the entire realm of spirituality. I think it is endless. The ingredients are endless. First of all, inside Satyug and outside Satyug itself are two huge topics, and I think the session can go on and on, but I think enough has been said. So thank you for organizing this. All right, very good. And I know Amit ji is doing a lot for contribution to humanity as well, where he is a perfect कर्म योगी, तो बहुत लोगों को contribute करते हैं life में. And also he is moving forward on his own spiritual journey because of his meditation and pranayam and the kind of spiritual work that he does. So let's acknowledge Amit ji for that. I know he is involved in many projects, in many groups, and he's a very active member in raising consciousness on planet Earth. Yes, and we are all, by the way, we are all work in progress. Huh? We are all WIPs. तो चाहे आपका कॉन्शियसनेस लेवल 1% पे हो या 99% पे हो, क्योंकि 0 और 100 तो थ्योरेटिकल है, तो इट कुड बी 1 or 99, doesn't matter. Only thing is you should be moving in only one direction where you are manifesting Satyug in your life. So that is the message. So invoke the divinity in you and remember the divine qualities. कौन बताएंगे सतोगुनी आत्मा के सतोगुनी संस्कार कौन कौन से हैं? कौन बताना चाहेंगे? Quick recap, and that will be the takeaway. It's already 4 minutes over time, so that will be the takeaway. सतयुगी संस्कार से आपको अपने लाइफ में सतयुग मैनिफेस्ट करना है और फिर उस लाइट को रेडिएट करना है. आपकी लाइफ में जितने लोग हैं वो उसको देखें और उसको इंस्पायर हों और उसको फॉलो करें. This is how we will start the manifestation of Satyug in our life. So see that you are a Satyugi Atma. You are manifesting Satyug in your family first, then in your society, then in your city, state, country, continent, then planet Earth. That is the inside out approach, right? And keep doing, because we are all कर्म yogis. जो आपकी लाइट है वो लोगों तक पहुंचनी ही है. So that is the journey that we will be looking forward to, correct? So quick takeaway, सतोगुनी संस्कार कौन बताएंगे? With that we will close the session. आप सतोगुनी आत्मा हैं, आपके सतोगुनी संस्कार हैं. अब वो छोड़ दीजिए जो विकार हैं. हाँ, जो 6 विकार हमने बोले थे वो मैं बता देता हूँ, पर वो आपको जितनी जल्दी हो सके देखना है और छोड़ना है. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, भय. ठीक है जी, इसको छोड़ना है. एक्टिवेट किसको करेंगे? कौन बताएंगे? लव, आई एम ए लवफुल सोल. पीस, आई एम ए पीसफुल सोल. Joy. पावर, आई एम ए पावरफुल सोल. प्योरिटी, आई एम ए प्योर सोल और आई एम ए डिवाइन सोल. अहम ब्रह्मास्मि, राइट? देन हैप्पीनेस, आई एम ए हैप्पी सोल. और joy, you can say I am a joyful soul, right? Bliss, I am a blissful soul. Wise, I am a wise soul. Wisdom, so divine love, divine wisdom, you access, connect with the divine by meditation and pranayam. You invoke that qualities in you and then you radiate that qualities to the people in your life. So in short, जो हमारे विकार हैं वो हमेशा हमको कैसे बनाते हैं? I want to take, I want to take, I want to take.
And the divine qualities in you will always say what? I want to give, I want to give, I want to give. So the whole process of manifesting Satyug from the clutches of Kali Yuga is to become a giver instead of a taker. Instead of wanting, start giving. That is the Guru Mantra that you should be operating in life. So instead of saying, I want to take, I want to take, I want to take, ye bhi chahiye, wo bhi chahiye, ye bhi chahiye. No. I want to give. I am a giver. और जो देता है उसको लोग देवता बोलते हैं, है ना? तो become a angel in your life, become a devta and start giving, start providing. And that's why I said Amiji is one of those who provides, who gives, who contributes, right? And that will invoke the divinity in you. So with this, we come to the end of the session. Any last question from anyone? Anjana ji, आपने अभी भी हाथ raise किया हुआ है, hand raise. You want to share something? Anjana ji, you want to share something? No. Ankit ji, you want to share something? यस सर, एक चीज हमने छोड़ दी, मुक्ति। अगर वो हम कर लें तो फिर तो मुक्ति ऐड कर दीजिए, ऐड कर ले, कहीं भी जोड़ बस देंगे उसको, बताइए। जी जी जी, बस मुक्त आत्मा को जब हम मुक्ति के लिए चाहेंगे ना, तो सब चीजें अपने आप होने लगेंगी। परफेक्ट है, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं। क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखें, मुक्ति हमको फ्रीडम किससे चाहिए? हमको मुक्ति चाहिए किससे? मुक्ति चाहिए किससे हमको? अगर ये देख ले, आप क्लियर हो जाएगा। बताइए। जी जी, अगर इंसान देख ले कि मुझे इस जीवन जो कार्य कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, करना निष्भाव से। आवाज थोड़ी सी कट रही है अमित जी, अंकित जी आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। मैं लाइन कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ जी बोलिए। नहीं, आप म्यूट पे चले गए, आप म्यूट पे चले गए। ओके, अंकित जी का पॉइंट था मुक्ति, तो फ्रीडम, करेक्ट। तो अगर आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो फ्रीडम किससे चाहिए आपको? अपने ईगो से ही तो चाहिए, अपने विकारों से ही तो चाहिए। तो उनसे फ्रीडम मिल जाएगी जब आप अपने अंदर दिव्य क्वालिटीज को जगाएंगे, तो यू विल ऑटोमेटिकली बी फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ईगो, यू विल बी फ्री फ्रॉम द विकार्स ऑफ द माइंड, करेक्ट। तो उनका पॉइंट मिसिंग नहीं है, it is already taken care of. Only thing is we have to understand in such a way that जैसे ही हम अपने विकारों को छोड़ेंगे, हम उनसे फ्री हो रहे हैं, उनके क्लचेस में नहीं है, then we will move on the path of divinity. So Ankit ji, did I answer that? मुक्ति ऐड कर दिया? नहीं अंकित जी, आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू फ्रॉम माय साइड। आप वीडियो ऑफ करके शेयर करिए, शायद सुनाई दे। वीडियो ऑफ करके शेयर करिए, सुनाई नहीं दे रहा है। वीडियो ऑफ करिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? वीडियो ऑफ करिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है सर, या मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अमित जी, इज माय नेटवर्क ओके? कैन यू हियर मी? Yeah, I think Ankit's signal is breaking a lot. Yeah. So Ankit ji, we will come back to you, and you can watch the recording. I will have a one-to-one with you maybe tomorrow, and then we can discuss it further. Yeah. Right now, you आपका वॉइस कट रहा है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके मुक्ति या फ्रीडम का पॉइंट मैंने ऐड कर दिया। Yes, everybody clear on that? ऐड कर दिया हमने। So you need freedom from the ego, you need freedom from the vikars, and that is how you will invoke the divinity in your life. So with this, we come to the end of the session. So thank you very much for your participation. I hope this session was valuable to all of you. Enjoy a great day, enjoy a great week. And we meet again next Wednesday with the topic of Universal Brotherhood, Vasudev Kutumbakam. We will talk on that because that is a further extrapolation of manifesting Satyug, right? So we will touch on that topic, and it is very dear to many people. So I welcome all of you to bring in more people because we are going to talk of Universal Brotherhood. So invite all your brothers so that we can create that Universal Brotherhood in this session next week. Thank you very much. Aham Brahmasmi. Sir, I want new people to leave their numbers, please. Yeah, so if you are coming here for the first time, you can leave your number in the chat box,
and we will get in touch with you. We will send the recording also to you. That is one. And yeah, before leaving, just one more thing. Many of you have contacted me for knowing the aura feedback and learning how to check the aura. So we have a session coming up on this Saturday, which I am taking that along with Gunjanji. This is on tarot reading. So it's a free session, free masterclass on tarot. This will be on Saturday, 11 to 12. The Zoom session, the Wednesday link will be the session. So all of you are welcome to attend that. Any questions you have, you can contact me tomorrow, and it will be going to be a wonderful session, and it will help you to check the aura for yourself and for others. And of course, then you can do the necessary healing for them as well as all the people in your life. So that's a small message. So I hope all the people who are interested will join us on Saturday, 11 a.m. Right. Thank you very much. Enjoy a great week. Aham Brahmasmi. Thank you. Aham Brahmasmi. Shivoham.